Good morning, all dear students. Today we will be discuss on topic external reconstruction. Very important topic of BCom part third. Here, students, all students are requested to note the notes in e-content. Let's start. When an existing company is liquidated at a new company is formed to take over the business. It is called external reconstruction. Existing company is liquidated at a new company is formed to take over the business. It is called एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. जब वर्तमान में चल रही कंपनी का लिक्विडेटेड किया जाता है बाई एक न्यू कंपनी जो उसका व्यापार टेक ओवर करती है बिजनेस. इट कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. उसे बाह्य पुनर्निर्माण कहा जाता है. द नेम ऑफ द न्यू कंपनी is similar to that of old company so that the new company can take the benefit old company name. नई कंपनी का जो नेम वो सिमिलर होता है पुरानी कंपनी के. बिकॉज न्यू कंपनी टेक बेनिफिट ऑफ ओल्ड कंपनी नेम. नई कंपनी पुरानी कंपनी के नेम से बेनिफिट प्राप्त कर सकती है जब नेम सिमिलर हो. अगर अलग नेम रखेंगे तो बेनिफिट आप ओल्ड कंपनी का नहीं कमा सकते, उसकी गुडविल को आप यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए उसका नेम है वो सिमिलर रखते हैं. इन द three situation amalgamation, absorption, external reconstruction, the assets and liabilities of liquidated company are taken over by other company. There is one or more vendor or transfer company and one purchaser or ट्रांसफर कंपनी. थ्री सिचुएशन है एकीकरण, सेवेलिन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बाह्य पुनर्निर्माण. तीनों सिचुएशन में द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लिक्विडेटेड कंपनी are taken over by other company. There is one or more vendor or transfer company and one purchaser of transfer company. तीनों सिचुएशन में लिक्विडेटेड कंपनी की जो संपत्तियां हैं वो एक या एक से अधिक विक्रेता द्वारा ली जाती है, जिसे विक्रेता को ट्रांसफर और परचेजर को ट्रांसफर कंपनी कहा जाता है. देयरफॉर
it is better to give all the three situation single name amalgamation. इसका सबसे बेटर जो नेम है, तीनों सिचुएशन को हम एक सिंगल नाम से बोल सकते हैं, अमालगमेशन मीन्स एकीकरण. द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI हैज इश्यूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किया है 14, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन. This accounting standard is mandatory for amalgamation of companies on or after April 1st, 1995. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इशू किया है, अकाउंटिंग ऑफ अमालगमेशन. दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज आफ्टर April 1995. Accounting of amalgamation. This accounting standard is mandatory for accounting for amalgamation of company on 1st April 1995. This means main features of accounting standard are as follow. इसके मेन फीचर्स हैं वो इस प्रकार हैं. अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मेजर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. दो प्रकार के आपके एकीकरण होते हैं, विलय प्रकृति और क्रय प्रकृति. नेचर ऑफ मेजर और नेचर ऑफ परचेज. अमालगमेशन इन द nature of measure. Amalgamation in the nature of measure is an amalgamation which satisfies all the following conditions. विलय प्रकृति का जो एकीकरण होता है उसमें निम्नलिखित जो कंडीशंस हैं उनको पूरा करना होता है. नंबर 1, all the assets and liabilities of the transfer company become after amalgamation all assets and liabilities the transferee companies. जो ट्रांसफर कंपनी है उसके एकीकरण के बाद उसकी सभी संपत्तियां और दायित्व ट्रांसफरी कंपनी को हस्तांतरित हो जाती हैं. एंड सेकंड सिचुएशन, सेकंड मैंडेटरी कंडीशन, shareholder holding not less than 90% of face value of the equity share of the transferee company. shareholder जो 90% से कम नहीं होने चाहिए फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी अदर देन द इक्विटी शेयर already held in there immediately before the amalgamation by the transferee company by virtue the amalgamation 90% शेयर है वो जो विक्रेता कंपनी है उसको हस्तांतरित किए जाएंगे जो उसके अलावा जो उसके पास पहले से ऑलरेडी हैं. इस प्रकार amalgamation of nature of measure is mandatory condition. Two condition. One condition, all the assets and liabilities transfer to transferee company. And second situation, 90% share of face value of equity share transfer companies transfer to transferee company
in the amalgamation. All share transfer to transferee company, thus called nature of major amalgamation. Two types of amalgamation. One, nature of major, and second, nature of परचेज। इस प्रकार विलय प्रकृति में दो प्रकार की जो कंडीशन है उसको फिल करना पड़ता है। नंबर 1, सभी संपत्तियां और दायित्व उसको ट्रांसफ़र किए जाएंगे क्रेता कंपनी को, और 90% शेयर है वो विक्रेता कंपनी के क्रेता कंपनी द्वारा क्रय किए जाएंगे जो पहले से मौजूद है। उसके अलावा ये दो कंडीशन पूरी होने पर उस एकीकरण को विलय प्रकृति का एकीकरण कहा जाता है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी इसके जो ये कंटेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो बात आपको अच्छी लगे उसको नोट करके रखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।